Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about the Calder's law of independent migration of ions. Okay, so this is very important law. So what is the statement of this law? So according to this law, at infinite dilution, where dissociation for all electrolyte that is complete and where all the interionic attractions they disappear, each ion migrates independently and contributes to the total molar conductivity. So what does it mean कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, so as the dilution is increase, so जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे, so the you can say the degree of dissociation that is increased with the dilution, and when we reach to the infinite dilution, जब infinite dilution पे और stage पे when we consider that at infinite dilution and we consider the dissociation of all the electrolytes that is complete, and at you can say at infinite dilution the interionic forces of attraction between the ions that is considered to be disappear. ठीक है, then each ion migrates independently. जब उन दोनों के बीच में कोई forces of attractions नहीं है, it means they are able to move, they are able to migrate independently. ठीक है, with respect to each other. एक दूसरे से वो attracted नहीं है ions. ठीक है, and they are free to move, you can say, and contributes to the total molar conductivity. यानी कि जब infinite dilution होती है, infinite dilution पे the dissociation of the electrolyte that is considered to be complete and interionic forces of attractions they disappear. ठीक है, और you can say they are negligible. Then each ion moves independently and contributes towards the molar conductivity. ठीक है, so according to the another statement, दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी क्या है. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is the sum of the ionic conductivities of the cations and the anions, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. ठीक है, अब इस पहले तो इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि that at infinite dilution when the dissociation is considered to be completed, there is, you can say, the negligible forces of interactions are there, or you can say almost forces of attractions they disappear. Each ion moves independently and migrate or you can say migrate independently and contributes towards the total molar conductivities. ठीक है, so this is the one statement of Calroche's law. Then according to another statement जो कि आपको इससे क्लियर हो जाएगा ज़्यादा, जो हमने एग्जाम्पल ली है, कह रहे कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें कंसीडर करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है AX एंड BY, और इस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ionic conductivities of the cation and the anions multiplied with the number of ions present in one formula unit. ठीक है, यानी कि ये अगर ये केटाइन है तो A के कितना नंबर है यहाँ पर और B का कितना नंबर है, एंड दीज नंबर्स दे आर मल्टीप्लाइड विद देयर आयनिक कंडक्टिविटीज. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दैट इज द सम ऑफ द आयनिक conductivities of cations and the anions multiplied with the number of ions present in one formula unit. ठीक है, इसको ये एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आई होगी ये स्टेटमेंट. अब देखो आप इसमें, ये तो हमने जनरल एग्जांपल ली थी. नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, सपोज दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. वी हैव टू कैलकुलेट, देन हाउ वी विल कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. सो NaCl ये केटाइन है इसमें, एंड Cl is anion. So ionic conductivity of cation, or you can say Na plus ion, और ionic conductivity of Cl negative ion. So इन दोनों की conductivities का अगर हम को प्लस करेंगे तो we will get the molar conductivity for NaCl. Same way
molar conductivity for barium chloride. So here barium is 1 in number and Cl is 2 in number, so that's why इसका Cl को जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, because the number of ions और Cl negative ions in the one formula unit that is 2, ठीक है, and Ba2 plus that is 1 and here it is only 1. And then the next example, molar conductivity for aluminium sulfate that is Al 3 plus, और कितने ions हैं इसके 2, तो this is multiplied by 2 and same way sulfate एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हमारे पास ये जितने नंबर ऑफ आयंस है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो न्यूमेरिकली ऑल्सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट. So here we have a list of conductivity of some ions. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो H प्लस आयन की, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन दैट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल द केटायंस, ठीक है. सो दिस इज़ 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल्स पर लीटर. तो ये कुछ केटायंस नीड नॉट टू लर्न ऑल दिस कंडक्टिविटीज, बट स्टिल यू कैन कंपेयर द कंडक्टिविटीज ऑफ दीज आयंस, ठीक है. जैसे H प्लस की सबसे ज़्यादा है, Na प्लस की हमारे पास 50.1 है. सो हेयर इट इज़ लिस्ट. सो अगर हमने सपोज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की निकालनी है तो यहाँ हमने Na की हम कंसीडर कर लेंगे 50.1 और Cl नेगेटिव की हम कंसीडर करेंगे 76.1. सो इन दोनों कंडक्टिविटीज़ को लेकर के वी कैन कैलकुलेट द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है. सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द कॉलरॉशियस लॉ एंड विद एग्जाम्पल. आई होप ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट, according to Colros's law we have, so these are some points related to the Colros's law. Suppose this is the molar conductivity of one salt and this is the molar conductivity of the another salt, and in both these salts the one ion is common, ठीक है. एक आयन जो है सपोज इसमें एनायन जो है दैट इज़ कॉमन, ठीक. तो हम इसकी कंडक्टिविटी का इसका हमने कंक्लूजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको ओपन किया, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस एंड B नेगेटिव, देन आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ C प्लस एंड B नेगेटिव. से ये दोनों हमारे पास B नेगेटिव और B नेगेटिव यहाँ पर कट हो गई दोनों की आयनिक कंडक्टिविटीज़, एंड देन वी आर लेफ्ट विद द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस माइनस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ C प्लस आयन. सो क्या कंक्लूजन हुआ इससे, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेनिंग कॉमन आयन. कि दोनों की कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होगा, दैट इज़ कंटेनिंग द कॉमन आयन, इट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस नॉट इन कॉमन, ठीक. जो दोनों में कॉमन नहीं है उनकी कंडक्टिविटी के डिफरेंस के इक्वल डिफरेंस होगा ये वाला, ठीक है. सो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, एनाइन जो था वो कॉमन था और इस वाली एग्जांपल में जो है वो केटाइन जो है वो कॉमन है. सो दोनों में ही हमारे पास कंक्लूजन जो है वो सेम आया, ठीक है. दोनों एग्जांपल्स मैंने लेके बता दिया आपको कि कोई भी कभी भी हमने मोलर कंडक्टिविटीज़ दो इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज़ में डिफरेंस कैलकुलेट करना है, देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट बाय just taking the difference between the ionic conductivities of the cation or the anion or whatever uncommon ions are there, and we used to take the difference and we can calculate the difference between the molar conductivities at infinite dilution of the particular electrolytes whatever we have taken, ठीक है. So this was all about the Colros's law. Next we have applications of Colros's law, ठीक. So the very फर्स्ट और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है कॉलरॉशियस लॉ की, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन.
जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में वेरिएशन स्टडी की थी मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने देखा था कि दैट वाज रफली, मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, कि मोलर कंडक्टिविटीज़ जो थी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ऐसे वेरी करती हैं, ठीक है। सो दैट वाज द मोलर कंडक्टिविटी, सो दे रन पैरेलल, सो वी कैन नेवर गेट द molar conductivities at infinite dilution, or you can say the limiting molar conductivities for weak electrolytes, but by just extrapolating, but we by using the Colrausch's law we can calculate the molar conductance for weak electrolytes at infinite dilution, ठीक है। so this is the one of the important application of Colrausch's law. So this law enables the indirect evaluation of limiting molar conductivity for weak electrolytes which cannot be obtained graphically by extrapolation, जो भी अभी मैंने आपको समझाया कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो अब दैट वाज द थ्योरेटिकल पॉइंट था ये हमारे पास। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, अप्लाई कैसे करना है Colrausch's law को टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ लेट्स हैव द एग्जांपल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज एसिटिक एसिड, ठीक है। वैसे तो कैलकुलेट हम नहीं कर सकते इसकी डायरेक्टली बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग, बट इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो, अगर हमने एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो दैट should be the sum of the ionic conductivities of this acetate and H plus ion। तो अगर हमारे पास एसीटेट आयन की हमें मिल जाए आयनिक कंडक्टेंस और H plus की मिल जाए, then easily we can using this equation we can calculate the molar conductivity for acetic acid, ठीक है। so now this equation can be obtained by knowing the molar conductivities at infinite dilution for the strong electrolytes such as KCl, दिस पोटेशियम एसीटेट एंड HCl एक्सेट्रा। अब हमारे पास इन तीनों सॉल्ट्स की, फॉर एग्जांपल तीनों सॉल्ट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ गिवन हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे, इस डाटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू ऑब्टेन द मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो, हमें ये कैलकुलेट करना है एंड दिस इज़ गिवन। अब अल्टीमेटली हमें रिजल्टेंट इक्वेशन जो है वो ये बनानी है कि हमारे पास एसीटेट और H प्लस आयन जो है वो प्लस में आए। अब देखो, हमें इस डाटा को इस तरीके से प्लस माइनस करके यूज़ करना है सो दैट द रिजल्ट इन द रिजल्टेंट वी हैव दिस इक्वेशन, फाइन। अब देखो, हमारे पास है पोटेशियम एसीटेट और H और एसीटेट को प्लस में आना है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे माइनस। देखो, प्लस में आने के बाद हमारे पास K और Cl जो है वो नहीं बचने चाहिए, तो माइनस हम KCl कर देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। तो इस ऐसे हमने इन दोनों कंडक्टिविटीज़, इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ को ऐडअप किया और सब्ट्रैक्ट किया, उसमें से हमने KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। अब इसको ओपन करने पर देखो, K प्लस और माइनस ये कट हो जाएगा, Cl नेगेटिव ये है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वी विल बी हैविंग दिस इक्वेशन। सो दिस वाज द जनरल एग्जांपल न्यूमेरिकली। अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होती हैं देन ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम यूज़ करके इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट जब हम करेंगे इससे रिलेटेड, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और अच्छे से आपको क्लियर कर दूँगी मैं, ठीक है। So the next application is calculation of degree of dissociation for a weak electrolyte. Alpha, which is the degree of dissociation for the weak electrolyte, that can also be calculated for a weak electrolyte by knowing this value, ठीक। अब weak electrolyte के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करना डायरेक्टली ईजी नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम इस मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यू कैन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। सो अगर मोलर है तो तब भी हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, समटाइम्स इफ इट इज़ गिवन देन ऑल्सो वी यूज टू टेक द रेशियो ऑफ दीज टू conductivities, molar equivalent conductivities or molar conductivities here, ठीक है। So by dividing these two values we can have the degree of dissociation for the weak electrolyte. So next application जो है हमारे पास
Colruy's law की, that is the calculation of the dissociation constant K फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो पहले हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज़ और यू कैन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ को कैलकुलेट किया, फिर हमने अल्फा को कैलकुलेट किया। नाउ नेक्स्ट वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा जो हमने पीछे अभी फॉर्मूला देखा है, वी जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ अल्फा हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो ओवरऑल इसको हम इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। सो बाय नोइंग दिस वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द this dissociation constant for a weak electrolyte, ठीक है। So the next application is the calculation of the solubility of a sparingly soluble salt. अब once this you have calculated K, then after that you can calculate the solubility of a sparingly soluble salt. So let's see how can we calculate the solubility. See, if a solute is sparingly soluble in a given solvent, its concentration is taken as its solubility. पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं उसमें, तो जो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होती है दैट इज़ कंसीडर्ड एज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। क्योंकि उतना ही वो सॉल्यूबल हुआ है सॉल्ट में, उसमें सॉल्वेंट में, और उतनी ही उसकी हम उतनी ही सॉल्युबिलिटी, उतनी ही कंसंट्रेशन होगी, उस कंसंट्रेशन को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस फार्मूला, दिस यू नो दिस फार्मूला, सो दिस इज द मोलैरिटी और यू कैन से द कंसंट्रेशन। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज एस, ठीक है, एज फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी को कंसीडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वी हैव, सी this one, in case if normality is given then also we can have S here, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जितनी उसकी कंसंट्रेशन है उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी को हमने उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखें S जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वेयर वी कैन कैलकुलेट द solubilities for sparingly soluble salts. So this let's take the example, like here this is aluminium hydroxide and if S moles per liter is the solubility. अब देखो ये डिज़ोल्व हुआ है जितना भी, तो उसकी कंसंट्रेशन है, ये उसकी कंसंट्रेशन होगी, इट मीन्स वी आर टेकिंग द S हेयर, ठीक। और यहाँ पर है 3S, यानी कि एक यूनिट अगर इसका डिज़ोल्व होता है दैट गिव्स अस 3 times of OH ions एज कम्पेयर टू द Al3+ आयन, ठीक। सो इसको हमने 3S माना। सो KSP, दिस इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और दिस इज द वे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हमारे पास ये फॉर्मूला है। देन एस वी कैन अप्लाई S 3S, whatever concentration will be given in case of numericals. So in this way it is calculated. So this is also one of the application of the Colruy's law. So here in this video we discussed about the Colruy's law and the various applications of the Colruy's law. So that's all for this video.